So a very good evening to all my dear friends. Today we have yet another dynamic candidate, and as you can see, he is Rishikesh, and he has qualified this year's NABARD Grade A examination in finance stream. And there is lack of awareness related to this discipline, and I think Rishikesh, being a dynamic person, I have been in contact with him. I've spoken to him several times, and the way he speaks, I think he is the most apt candidate who can explain that what to refer, what not to refer, especially for the finance discipline persons. So my heartiest congratulations, Rishikesh, to you for cracking this examination, because in finance, I know the difficulties, and it is not like other specialization where you get easily the seat for you. It is a tough fight in finance as well. So my heartiest congratulations to you, Rishikesh, for making into NABARD Grade A Select List 2022. My voice is clear to you, Rishikesh? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. It is clear, sir. Thank you very much, sir, for first of all inviting me to this platform. Clarity for sure. I was watching, I don't know, since 1.5 years, and the difference is earlier I was on that side. Now I'm able to help others. So it is a great opportunity for me also as well. And you have always been a guiding light for me. Whenever I was stuck, I was not having the clear-cut solution. I have always dialed you, and you always very much happy to help people like us. So there is a lot of I think confusion, and there is a lot of misinformation also, which is there in the internet as well. When guidance from your side, if it comes to us, I think a lot of doubts and a lot of issues are cleared, sir. So thank you very much for guiding people like us, and thank you for calling me on this platform, sir. Yeah, thanks, Rishikesh, for the gesture. So Rishikesh, if you can give us just a brief background, what you are doing and what is your educational background and what you are doing right now these days. Sir, I am from Prayagraj, Uttar Pradesh, and I am a Kendriya Vidyalaya student. My father is in Kendriya Vidyalaya, Bamroli right now. Then after that, I did my BCom from University of Allahabad. Then after that, I did my MBA from Motilal Nehru National Institute of Technology with a specialization of marketing and finance. After that, sir, I appeared for a specialist officer IBPS exam and cracked the exam. Currently, I am working in public sector bank from last 2.5 years. After that, I have given the NABARD attempt also last year also, but I was not able to get into the final list. I was there in the interview. I missed the final cutoff by 4 marks, and that was quite heartbreaking. Then again, I gathered myself, and this year, sir, finally, I'm there in the final list. Good. The fighting spirit should always be there in the candidates. So Rishikesh, see, phase 1 of the examination is quite common to all the discipline aspirants, right? So how finance students should look into this phase 1 of the examination, if you can elaborate, because you have 2 attempts, 2 times you have given this examination. So how a finance student should view this phase 1 of the examination? Sir, I would divide the strategy in 2 phases. First is the merit section, second is the non-merit section. So non-merit section consists of QRE, decision-making computer, and one more subject is there, decision-making computer, and QRE is there. Okay. So QRE was something which I was not having any issue because I have written CAT as well as specialist officer exam. So I was very comfortable in it. And QRE is a section where you have to be very smart. By saying this smart, it means there are always in QRE 3 types of questions will be there. One which is very easy, and they will be put in between. It will not be in the starting, it will not be in the end. They will be in the between of the paper. Second is the moderate one. It will be in the starting and the end, and the tough one will be there nearby the easy ones. So we have to search for the easy questions first of all and clear the sectional cutoff, because I know many people who are having great command on the merit section and also other sections, but they were not able to clear the sectional cutoff. So first of all, very important, sectional cutoff should be your priority. Secondly, you should know your strength, weakness, and opportunity where you can increase, and where are the threats which can make you not qualify the exam. Like my strength was, I'm very good at
English. Say I can do the English part very easily. I can do the computer part very easily. So I knew that these are the sections where I will be easily able to cope up my. And apart from that, those sections which I am weak in, say I am weak in math. So I knew that in maths I will not touch those questions who are tough to do. I will touch the number series, I will touch the simplification, I will touch the quadratic equation, and I will clear this sectional cutoff. Same I did with reasoning, syllogisms, inequality, blood relation, done. Next I went to English, reading comprehension, and fillers. I didn't touch the grammar section because I was not in the state of mind to do that 120 rules of grammars. So that also done. Decision making, it is very critical, and I think that is the major hurdle for any student being from any stream. So decision making, you have to be I think सर आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है. आपके जो नोट्स हैं भले वो 15-20 पन्ने के हैं, लेकिन वो इतने कारगर हैं कि अगर डिसीजन मेकिंग के वो 15-20 पन्ने 25 पन्ने कर लिए किसी ने तो आराम से सेक्शनल कट ऑफ निकल जाएगा. देन टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर, क्योंकि सर हमेशा से ही कंप्यूटर के टच में रहा हूँ, मोस्टली इनके क्वेश्चंस जो होते हैं एमएस ऑफिस के आसपास होते हैं, तो वो आसान से हो जाता है. तो ये हो गया सर क्वालिफाइंग सेक्शन में. अब मेरिट सेक्शन में मुझे पता था कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो एआरडी है. मैं ईएसआई हो सकता है शायद मैं इतना लेवल अप ना कर पाऊं, लेकिन एआरडी में मुझे पता है कि मेरा इंटरेस्ट है. मुझे सॉइल साइंस पसंद है, मुझे एनिमल ब्रीड पसंद है, मुझे वो सारी चीजें अच्छी लगती पढ़ना, तो वो मैं अच्छे से पढ़ के निकाल सकता हूँ. और एआरडी इज मोर एंड लाइक इट इज 25 क्वेश्चंस जो आएंगे वो स्टैटिक ही होते हैं, जो कि आप अगर नोट्स पढ़ लें तो आप आराम से, आपको फैमिलियर लगेंगे वो क्वेश्चन. ऐसा नहीं कि आप सॉल्व कर लेंगे, फैमिलियर लगेंगे कि हाँ मैंने पढ़ा है. और 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट के बेसिस पे रहते हैं. तो वही मैंने 25 क्वेश्चन जो मैंने एम किए थे, मैंने अटेम्प्ट भी 25-26 किए थे, और आई थिंक उसमें 23-21 सही होंगे. देन टॉकिंग अबाउट ईएसआई इज ऑपोजिट ऑफ एआरडी. यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन जो होते हैं, इट इज मोस्टली फ्रॉम करंट, स्टेटिंग फ्रॉम द बजट, स्टेटिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे, स्टेटिंग फ्रॉम द करंट अफेयर्स, पीआईबी, ये सब कंपाइल करके आते हैं. और 5 से 6 चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी. ये सारे चैप्टर्स अगर आप कर लें तो यू आर गुड टू गो, बिकॉज दीज टर्म्स लाइक स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, फुल इन्फ्लेशन, ये सब क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए बेसिकली. उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस. सर, though it is said that we have to cover 6 months current affairs, but being a working aspirant, I didn't had that time to cover that 6 months. So I जैसे मैंने आपसे बात किया था, आपने बताया भी था कि ज्यादा नहीं, 3 से 4 महीने कर लीजिए, that is sufficient. मैंने 3 महीने के किए थे from बैंकर्स अड्डा. 50 to 60 पेजेस होते हैं, एंड आई थिंक उसको 2 या 3 बार रिवाइज कर लिया था, तो मेरा इतना बेस बन गया था कि मैं आराम से उसमें स्कोर कर लूँ. देन उसके बाद एक मॉक टेस्ट, कोई भी आप स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट ले लीजिए जिसमें सब कुछ हो, क्वालिफाइंग भी हो और मेरिट भी हो. उसमें जीए जो आता है 200 क्वेश्चंस, अगर 10 मॉक ले रहे हैं आप तो 200 क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए और 3 मंथ्स का बैंकर्स अड्डा या कोई भी करंट अफेयर कंपाइलेशन कर लीजिए. दैट इज सफिशिएंट टू क्लियर दी मेरिट सेक्शन. लास्ट ईयर मेरिट में कुछ कट ऑफ से करीबन ऑलमोस्ट डबल था सर जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर फाइनेंस की. इस ईयर मार्क्स नहीं आए, लेकिन इस बार भी आई एम श्योर कि मेरा अच्छे मार्क्स होंगे. तो ये सर फेज 1 की स्ट्रैटेजी है. मैं फाइनेंस वालों के लिए इतना ही कहूंगा, कट ऑफ देखिए ज्यादा जर्नलिस्ट से थोड़ी कम रहती है हमारी, तो हमें फोकस ये करना है कि हम हर सेक्शन को क्वालिफाई करें, कहीं पे रुके ना, और मेरिट में इतना हम लेवल अप कर लें कि हमें मेंस की कॉल आ जाए. क्योंकि मेरे हिसाब से प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट फेज ऑफ द एग्जामिनेशन कंपेयर्ड टू मेंस. तो ये सर मेरी स्ट्रेटेजी फॉर फेज 1 सर. ओके, Jessica is very good. Clearly, आपने explain किया all the issues of the phase 1. So when we move on to the phase 2 में जब हम move करते हैं phase 1 से, तो एक time period होता है. तो बहुत से students start कर देते हैं जब तक prelims कुछ results का wait करते हैं, होगा नहीं होगा पता नहीं. तो आपने क्या किया था? And finance में especially मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो इस साल मान लो फाइनेंस में आती है, तो देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस रिलेटेड टू फाइनेंस सब्जेक्ट की कौन से बुक्स, बिकॉज फाइनेंस इज इटसेल्फ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, यू डू नॉट नो कि क्या करना है नहीं करना है. थोड़ा सा पर्टिकुलर होके बताना फाइनेंस जो पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे कवर करना चाहिए, क्या स्पैन होना चाहिए, हम कितने डेप्थ पे जाए कितने डेप्थ में ना जाए. सर जैसे ही लास्ट अटेम्प्ट में मेरा रिजल्ट नहीं आया था, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं क्या कट ऑफ जाएगी, मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा. और ये बहुत बड़ी गलती होती है सारे एस्पिरेंट्स की.
इनफैक्ट मेरी फर्स्ट वन में बहुत बड़ी गलती थी, शायद इसीलिए मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने बिल्कुल वेट ही नहीं किया। जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ उस दिन शाम को आके रेस्ट करके मैंने शुरू कर दिया था अपनी तैयारी। रीजन बीइंग, आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, वो 45 to 50 डेज का टाइम रहता है जिसमें आपको कॉम्पीट करना होता है। और कॉम्पीट भी इस तरीके से करना होता है कि फाइनेंस में कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है। बहुत टफ इन द सेंस, आपका कॉम्पिटिशन होगा सीए से, अगर आप एमबीए फाइनेंस है तो, और अगर आप बीबीए हैं तो एमबीए फाइनेंस से। तो कंपटीशन में जो आते हैं वो अच्छे खासे नॉलेज लेकर आते हैं, तो आपको एकदम वेल इक्विप्ड रहना है कि आपको कॉम्पीट उनसे करना है। और रही बात तैयारी की, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है सर कि अगर हम सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो कि मेरा भी था। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं दिया था और मेरे 54 आए थे, जो कि मुझे समझ में आ गया था कि बहुत कमी है उसमें। तो इंग्लिश में मैंने काम इस तरह से शुरू किया सर कि क्या गलती है, क्यों नंबर नहीं बन रहे। तो मैंने सोचा शायद ये डेटा ऐड करना मैं रह गया, शायद इसलिए होगा। लेकिन फिर अगर ट्रांसपोर्टेशन का डिफरेंस का ऐसे आ रहा है तो उसमें मैं क्या ही डेटा ऐड करूंगा। तो मैं समझ गया था कि देयर इज अ डिफरेंस। वो जो प्रॉब्लम आ रही है कंटेंट से ज्यादा उसमें फ्रेमिंग में आ रही है, स्पेलिंग्स में आ रही है, पंक्चुएशंस में आ रही है, एंड जो एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे लिखने में या लेटर लिखने में या प्रीसी लिखने में, वो उसमें आ रही है। तो सबसे पहले मैंने रूल्स देखे सर, ऐसे की क्या रूल है, लेटर राइटिंग के क्या रूल है, फॉर्मल इनफॉर्मल, एंड देन प्रीसी का क्या रूल है। एक बार रूल समझ में आ गया, 1 या 2 दिन का टाइम लीजिए उसमें, और उसके बाद फिर अपना आप शुरू कर दीजिए। शुरू कर दीजिए इन द सेंस, आप अगर हो सके तो 200 300 400 वाले जो कीबोर्ड आते हैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए और उसमें टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। रीजन बीइंग, एग्जाम में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा हमें नहीं पता होता। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे मिल जाते हैं, कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है। इस अटेम्प्ट में जो कीबोर्ड था वो इतना टफ था टाइप करने के लिए कि जब मैं दबा रहा था तो वो उसमें दिख नहीं रहा था। So it was very tough. The interface was not that friendly. So you have to be well versed with the typing practice. Secondly, the grammatical and punctuation marks जो आप लगाते हैं वो बहुत ही clearly होना चाहिए कहाँ पे आप लगा रहे हैं। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ कैसे यूज कर रहे हैं। आर्टिकल में द कहाँ यूज कर रहे हैं, अ कहाँ यूज कर रहे हैं, वहां पे बहुत गलतियां होती हैं, इस, आर, वर। तो यही सारी गलतियां आपके मार्क्स गिराती हैं, तो ये सारे नाम आपको ठीक करने हैं। इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, आप पहले एमएस वर्ड में टाइप करिए, ग्रामरली करके एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें कॉपी पेस्ट करिए और आपको उसमें मार्क्स पता चलेंगे कितने आ रहे हैं। एंड डे बाय डे आप इंक्रीज करिए, आपको समझ में, वो एक्चुअली सजेशंस भी देते हैं कि क्यों गलत है वो चीज, आपकी यहाँ पे क्या गलती है। तो वो सजेशंस को आप देखते रहिए, और हर ऑल्टरनेटिव डेज पे या हर 3 दिन में एक आंसर 2 आंसर लिख रहे हैं आप, तो मुझे लगता है दैट इज वेरी गुड। मैं ये नहीं बोलूंगा कि डेली प्रैक्टिस करिए 4-5 आंसर लिखिए। रीजन बीइंग, आपको पढ़ने पे ज्यादा फोकस करना है। एक बार स्ट्रक्चर बैठ जाएगा तो उसके बाद फिर आप टाइपिंग प्रैक्टिस से अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। सर ये हो गया फेज 1 का। फेज 2 का इंग्लिश। अब सेकेंड पार्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है फेज 2 फाइनेंस। अब फाइनेंस में 2 पार्ट होता है, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। अब हमारे स्ट्रीम में प्रॉब्लम ये है कि कहीं पे भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या चीज तैयार करके जाना है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था लास्ट अटेम्प्ट में। आई वाज नॉट अवेयर दैट व्हाट नीड टू बी प्रिपेयर्ड, सो आई प्रिपेयर्ड एवरीथिंग अंडर द सन। आई गूगल्ड एवरीथिंग, यूट्यूब डिड एवरीथिंग फ्रॉम ऑल द बुक्स, व्हाटएवर आई गॉट, आई रेड इट एंड आई वेंट इट, एंड दैट वाज वेरी बिग ब्लंडर, बिकॉज व्हेन यू रीड many things you lose the essence, what is the important part in the syllabus. For example, in finance, you have to be thorough with the ratios. You have to be thorough with the financial statement. You have to be thorough with the accounting policies. Accounting standards थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा. Then capital budgeting methods होते हैं, costing का होता है, then उसके बाद Kaizen theory होती है. तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से thorough होना है. Management practices, management theories, motivational theories. ये बीबीए के सिलेबस में होता है लास्ट पेज में, और वो ऐसी टॉपिक छोटे छोटे लिख दिए होते हैं, तो कई बार वो ध्यान नहीं देते कि ठीक है पढ़ लेते हैं, तो है मोटिवेशनल थ्योरी पता है क्या है। कई बार ऐसी थ्योरी आ जाती है जो पता ही नहीं रहती कि क्या है, कुछ टॉपिक्स छुपे रहते हैं सिलेबस में। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में आ गया था, तो वो वर्ड जो होते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है, क्योंकि कई बार इसी से डायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपका फाइनेंस में अप्रोच ये होना चाहिए कि कुछ टॉपिक्स को तो आप एकदम थरो पढ़िए जो मैंने अभी बताया, और बाकी पूरे सिलेबस को आपके पास एक पन्ने का कम से कम नोट होना चाहिए उस पर कि क्या है वो चीज, कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे वो यूज कर रही है कंपनीज, और क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं उसके। एंड लास्ट में कंक्लूजन, अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कुछ है तो लिख दीजिए। लास्ट अटेम्प्ट में एनवायरमेंट ऑडिट के बारे में आ गया था, सिर्फ इतना पता था कि एनवायरमेंट ऑडिट क्या होता है, उसमें कैसे आप वो 400-600 वर्ड लिखेंगे पता नहीं।
तो इस बार मैंने सर ये किया था कि मैंने एक एक पेज का हर टॉपिक का नोट बना लिया था कि मेरे पास मैटर होना चाहिए लिखने के लिए। जब आपके पास इतने मैटर रहता है तो आप किसी का आंसर में भी थोड़ी बहुत चीजें एग्जाम्पल के तौर पर, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है एग्जाम में कि बस कंटेंट की कमी नहीं रहती, फ्रेमिंग तो आप कर लेते हैं। और जब कंटेंट की कमी नहीं रहती तो आपको सोचना नहीं पड़ता तो आप टाइप जल्दी कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद आप प्रूफ रीडिंग भी कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सेंस बना रहा है मेरा जो स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो इस तरह सर मैंने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी की। डिस्क्रिप्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। 150 मार्क्स है वो, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बट ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, ऑब्जेक्टिव में आप बता सकते हो कि आप कितने मार्क्स बन रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में आप नहीं बता सकते जब तक मार्क्स आउट नहीं हो रहे। क्योंकि मेरे लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव में सर 34 मार्क्स थे, तो मुझे लग रहा था बहुत बढ़िया नंबर है, बट ऐसा नहीं है। इस बार जब मैंने ऑब्जेक्टिव देखे आया तो मेरे 41 मार्क्स बन रहे थे, तो मुझे पता था कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं ऑब्जेक्टिव में। और डिस्क्रिप्टिव में तो मैंने जितनी भी अपनी कह लीजिए कमियां थी उसको डे बाय डे इम्प्रूव किया। अगर मान लीजिए मेरे पहले दिन में मेरे अगर आर्टिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगले जब मैं आंसर लिख रहा हूँ तो उसमें आर्टिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। राइट। हेलो ऋषिकेश। Hello, Rishikesh. I think we have Yes, lost yes, connection. Yeah, you're audible. So, yes. Rishikesh, last phase of the examination is interview, जो कि आपने starting में ही बताया, बहुत important है. तो एक फाइनेंस स्टूडेंट के लिए कैसा होता है NABARD का इंटरव्यू? बहुत डिफरेंट होता है सर, और इसमें मैं आपको बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा सर कि जिस तरह से आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया है, आई थिंक फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से कह सकते हैं वरदान है। क्योंकि एक्चुअली इंटरव्यू में क्या होता है वो आपने पूछा था, मुझे एक क्वेश्चन याद है, आपने मुझसे पूछा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट है वो अप्रोप्रिएशन कौन कौन से रिजर्व में होता है, और वो सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो क्वेश्चन मॉक में पूछ रहे हैं वही क्वेश्चन सेम वहां पे आ जाता है। तो ज्यादा मॉक इंटरव्यू देने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होती है। आपको कंटेंट क्लियर अगर है कि मुझे ये चीजें पढ़नी है, ये चीजें पूछी जा रही हैं, तो एक या दो मॉक इंटरव्यू अगर आप दे दे रहे हैं तो यू आर वेल टू गो। आपको बात करने आना चाहिए, एक्सप्रेस करने आना चाहिए, जो भी लैंग्वेज में यू आर कंफर्टेबल इन, वेदर इट इज हिंदी और इंग्लिश, आप एक्सप्रेस कर सक रहे हैं अपनी बात को, वो समझ पा रहे हैं आपकी बात को, इतना ही है। दिस टाइम माय इंटरव्यू वाज वेरी गुड। इट वाज अ टू वे कम्युनिकेशन, सर भी मुझसे बात कर रहे थे, मैं भी उनसे बात कर रहा था। कुछ क्वेश्चन वो मुझे पूछ रहे थे, मैं उनको प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर पा रहा था अपनी बातें। इट वाज नॉट अ क्वेश्चन आंसर का तरीका, सो दैट हेल्प मी अ लॉट। एंड फाइनेंस वालों को बहुत इंपॉर्टेंट है एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बाइबल है। अगर उतना आपने अच्छे से कर लिया है तो मोस्टली आपने कर दिया है अच्छे तरीके से। देन उसके बाद आपका वर्क प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सपीरियंस है तो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑडिटिंग के कुछ चैप्टर्स कर लीजिएगा, ऑडिट रिपोर्ट किस तरह की होती है। उसके बाद एक रेशियोज में बहुत थॉरो होना चाहिए। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में जैसे एनपीवी, आईआरआर, डिस्काउंटेड, पेबैक, ये सारे मेथड्स होते हैं, उसमें पता होना चाहिए क्या है ये चीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए। एक फेवरेट क्वेश्चन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल। वो चीज का आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये मोस्टली आता ही है। तो एक दो मॉक इंटरव्यू आप ले लीजिए, क्लैरिटी का तो फॉर श्योर लीजिएगा क्योंकि सर बहुत रिलेवेंट चीजें पूछेंगे। बाकी एक दो और ले लीजिएगा जहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट हो सकेंगे कि आप बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो इससे इंटरव्यू के लिए आप तैयार हो जाएंगे। राइट। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसा ऋषिकेश ने भी कहा, कि आपको बात करनी आनी चाहिए वहां पे। कम्युनिकेशन शुड बी टू साइडेड, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो या फिर वो बोल रहे हो। अगर दो साइड से चल रहा कम्युनिकेशन तो यू थिंक दैट योर इंटरव्यू इज गोइंग वेल, ये अच्छा जा रहा। एंड वन मोर थिंग इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करना चाहिए ऋषिकेश। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव सीन द मार्क्स ऑफ द मेनी स्टूडेंट, या बहुत से लोग मान लो इस कन्वर्ट नहीं कर पाए। मुझे एक इस एरिया में कमी लगती है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है इंटरव्यू में। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी यू शुड क्वालिफाई 2023 होना चाहिए, तो रिटर्न के अलावा आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ध्यान देना ही, बिकॉज इट कैरीज अ चंक ऑफ मार्क्स। 50 मार्क्स बहुत होते हैं इस एग्जामिनेशन के, तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए। देखिए ऋषिकेश कैसे बात करे, हाउ इज कम्युनिकेटिंग द थिंग्स, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम हिज कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। वेरी गुड। नहीं नहीं सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट वो आ जाता है धीरे धीरे जब हम काम करते हैं और बात करते हैं, तो धीरे धीरे वो डेवलप हो जाता है।
Because my last question to you, आपने बहुत टाइम दिया कि कोई 2-3 ऐसे चीजें बताए जो नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। करने को तो बहुत कुछ है, क्या ना करें। सर पहली चीज तो ये नहीं देखनी चाहिए एप्लीकेशन कितने पढ़ रहे हैं, कितने एप्लीकेशन आ रहे हैं, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन अप्लाई कर रहा है। ये बहुत ही इमटेरियल होता है, क्योंकि अगर आपको पता है रास्ता कैसे जाना है अपने एम के पास, तो बहुत ही आसान हो जाता है जर्नी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है एस्पिरेंट्स के लिए, उनको पता ही नहीं होता किस तरह से आगे बढ़ना है, और इसीलिए बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं वो सारी चीजें करने में जो हमें नहीं करनी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने पता नहीं क्या क्या इंटरव्यू में पढ़ लिया था, जो कि मुझे कुछ भी नहीं पूछा गया था। तो मेरा इंटरव्यू इस तरह से गया कि मेरी वर्क प्रोफाइल से पूछा गया, मुझे वही चीज नहीं पता थी और मैंने वो प्रिपेयर नहीं किया था। तो इट वॉज अ वेरी बिग ब्लंडर लास्ट ईयर। इस बार मेरे वर्क प्रोफाइल के बारे में मुझे सब कुछ पता था कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ, एंड इट वॉज वेरी गुड। जब आप प्रिपेयर रहते हो, आपके पास आर्सेनल पे सारे आपके एकदम इक्विपमेंट आपके पास रहते हैं, तो यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस बिना किसी झिझक के। बट आपके पास अगर आपके ही बारे में आपको नहीं पता है, आपके वर्क के बारे में आपको नहीं पता, आपके डैफ के बारे में आपको नहीं पता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो इंटरव्यू फेस करना। एंड सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, 50 मार्क्स है। लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट मोस्ट ऑफ द सिलेक्शंस, मतलब 90% जो सिलेक्शंस होते हैं वो आके इंटरव्यू पे ही रुकते हैं। तो 10% का जो चेंजेस होते हैं वहीं पे होते हैं। अगर किसी को 2 नंबर 3 नंबर और ज्यादा डिफरेंस नहीं होते मार्क्स में, अगर आप मार्क्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हाईएस्ट मार्क्स जाएगा 170 174 के आसपास और कट ऑफ जाएगी 164 के आसपास, तो 10 नंबर में ही सिलेक्शन होते हैं। तो आपको एक एक नंबर के लिए फाइट करना है। 0.25 0.75 लास्ट ईयर में 4 नंबर से रह गया था। अगर 4 नंबर इंटरव्यू में ज्यादा होता तो शायद पिछले साल ही हो गया। तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, ये चीज एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार हम बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं कि डेली डेली पढ़ना है, डेली डेली पढ़ना है। वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है। कई बार आपके कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, कई बार आपका कुछ है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज ओके। बट यू शुड एक्सेप्ट इट कि कल नहीं पढ़ा है तो आज में तो वो थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना है, कल का भी मैं आज कवर कर लूंगा। उसमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैंने कल नहीं पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप टच में रहेंगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। जैसे मान लीजिए मैंने 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसी पढ़ाई चल रही है, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होगी एग्जाम के टाइम पे। पूरा फोकस एग्जाम के टाइम के आसपास नहीं होना चाहिए। आप धीरे धीरे अपना आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, मैं वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए कह रहा हूँ, बाकी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए आप थोड़ा टाइम देते रहिए, साइड बाय साइड हो जाएगा। एवरीथिंग इज वेरी पॉसिबल सर। Right. Thanks Rishikesh so much for giving your time and letting in detail सब कुछ आपने डिटेल में बताया। आई थिंक आपने जितनी बातें बताई, बहुत सारी चीज जर्नलिस्ट को सीखने को भी है आपके पूरे प्रिपरेशन एरिना में। बहुत सारे पॉइंट्स लिए जा सकते हैं पॉइंट प्रिपरेशन। सो माय बेस्ट विशेस टू यू फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू सर।